Good morning everyone. Now 11th Commerce English Medium Economic chapter number 6 Monopoly Competitions. The economics considered the perfect market and monopoly as two completely opposite theories. दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोज हैं. Monopoly is an imaginary concept. The monopoly observed is in reality imperfect monopoly. Monopoly has originated from the Greek word monos which means single and polyon means seller. जिस मार्केट में एक ही सेलर होता है that means monopoly. So the monopoly means market having one seller. Now the definition according to Professor Chamrin, when the product supply is controlled only by a single enterprises, it is called monopoly. जहाँ पर पूरे के पूरे मार्केट का सप्लाई एक ही इंडस्ट्री कंट्रोल करती है दैट मीन्स मोनोपोली. सेकेंड आता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्ट्रिगलर, ओनली वन एंटरप्राइजेस इज द सेलर ऑफ द गुड्स एंड प्रोडक्ट. जहाँ पर मार्केट में एक ही पर्सन सेलर और प्रोड्यूसर्स हो दैट इज ऑल्सो नोन एज मोनोपोली मार्केट. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. First is only one producer or seller and numerous buyers. There is only one seller or producers of the product and goods who controls the supply of product. There is no competition in the market as there is only one seller. यहाँ पे एक ही seller होता है, एक ही producer होता है, इसलिए competition की तो कोई बात ही नहीं आती. Allowing the sellers or the producers to control the price of the product, the producers or seller can decide the price of the product, so known as the price maker of the market. इसीलिए यहाँ पर उसको प्राइस मेकर भी कहा जाता है क्योंकि वो पूरे के पूरे मार्केट को अकेले ही कंट्रोल करता है. When there are countless buyers in the market, the importance of a single buyers becomes negligible. यहाँ पर एक ही प्रोड्यूसर है और बहुत सारे बायर्स हैं, तो वहाँ पर एक अगर बायर कोई आर्ग्यूमेंट करता है कि प्राइस कम या ज़्यादा होनी चाहिए तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे बायर्स अवेलेबल्स हैं. सो देयर इज़ अ competition same between customer in monopoly. The buyers thus cannot affect the price of the product. यहाँ पे seller affect कर सकता है लेकिन customer price को affect कर सकता नहीं है. Second आता है absence of substitute goods. There is absence of substitute goods in monopoly, but as in reality there is an imperfect monopoly. यहाँ पे सब्सिट्यूट गुड्स होता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर दूसरी इंडस्ट्री नहीं है, तो सेम प्रोडक्ट कौन लॉन्च करेगा और कौन उसका प्रोडक्शन करेगा. सो देयर इज अ absence और ignorance of the close substitute. There may be a rare possibility or similar product available. For examples, if while buying a railway ticket from a specific company for a specific time to a specific location and ticket is unavailable, then there is a no possibility having a similar and substitute ticket to the location. But one can try those possibility to traveling by aeroplane and on the same time to the same locations. उसी जगह से उसी प्लेस से एरोप्लेन से हम ट्राई कर सकते हैं बट बाय नॉट ट्रेन. सो एब्सेंस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स. थर्ड आता है हमारा रिस्ट्रिक्शंस ओवर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म. देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट. मोनोपोली मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन सेलर. इट इज़ पॉसिबल टू द एंड the monopoly but being a difficult process, the seller can sustain his monopoly for a longer duration. क्योंकि यहाँ पर वो किसी न्यू फर्म को एंट्री ही नहीं करने देता है तो वो लॉन्गर टाइम तक प्रॉफिट लेता रहता है. Due to absence of competitions, the seller control the price and gain supernormal profit. जितना उसे गेन करना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा वो प्रॉफिट गेन करता है. Even though there is a supernormal profit due to monopoly, the other firm cannot easily enter the market. The monopoly restrict newer firm by the factors like natural law, skills and experience. नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स.
the gain maximum profit, seller control the supply of the product, but the seller cannot control with the price and sales of the product. एक साथ दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन एक एक करके दोनों को कंट्रोल करता है. To sell less units or product, the firm set higher price, and while to sell more unit of the product, the firm must be lower price of the product. इस तरीके से वो प्रॉफिट भी अर्न करता है और सेल्स का क्राइटेरिया भी अपने हिसाब से चेंज करता है. So to sell large number of unit product with high price is not possible. दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं होती, बट वी कैन से इज दैट ये कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स, एक करके दोनों पर कंट्रोल हो सकता है. नेक्स्ट आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. इन अ मोनोपोली मार्केट प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स आर द सेम. दोनों सेम होते हैं, एक ही प्रोड्यूसर है, वही मार्केट के अंदर गुड्स को क्या करता है, सेल करता है. The seller can gain supernormal profit without any competition in both shorter and longer time period. चाहे टाइम शॉर्टर हो चाहे टाइम लॉन्गर हो, दोनों ही तरीके के टाइम पीरियड के अंदर वो अपने मन मर्जी के तरीके का प्रॉफिट ले सकता है. The seller can put high price on the producer as compared to the total expenses, thus gaining supernormal profit. वो वहाँ पे हाई प्राइस रख करके अपना प्रॉफिट क्या कर सकता है, गेन कर सकता है. सो सुपरनॉर्मल प्रॉफिट. नेक्स्ट आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, द सेलर कैन सेट डिफरेंट प्राइस ऑन द सेम प्रोडक्ट. एब्सेंस ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, देन वी कैन से दैट सेलर कैन सेट डिफरेंट प्राइस ऑन द सेम प्रोडक्ट. एक ही प्रोडक्ट के लिए वो अलग अलग प्राइस डिसाइड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज और फॉर्म्स. द सेलर दस कैन गेन हायर प्रॉफिट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस लाइक अ डॉक्टर. डॉक्टर अपने हिसाब से फीस लेता है, सबका सेम चार्जेस नहीं होता है. जैसे अगर उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस और उसका जो क्राइटेरिया है सर्विसेज प्रोवाइड करने का वो बेटर होगा, तो वो दूसरे डॉक्टर से फीस कैसे लेगा, ज़्यादा लेगा. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे प्राइस हर एक यूनिट की और एज पर द एरिया वाइज चेंज हो जाती है. नेक्स्ट आता है फॉर्म इज इंडस्ट्री. द फॉर्म इज इंडस्ट्री. आइडियली अ फॉर्म is the independent unit of productions, while the industry is the collection of the firm producing same product. However, in monopoly, the producer and the seller are same. यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले और उसको सेल्स करने वाले अलग अलग डिफरेंट पर्सन नहीं होते, सेम पर्सन. वो इज प्रोड्यूसर, इट इज़ अ सेलर. सो द कलेक्शंस ऑफ फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ सिंगल फॉर्म. यहाँ पे एक ही फॉर्म होती है जो सेल भी कर रही है और प्रोड्यूस भी कर रही है. दैट्स वाई वी कैन से इज दैट फॉर्म इज बिकमिंग एज अ इंडस्ट्री. सो यहाँ पर मोनोपॉली कॉम्पिटिशन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं. डू वेल. थैंक यू.